اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ آج بھی میرے گھر کے اوپر والے خفیہ کمرے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں سب کو چائے پیش کر کر کے تھک چکی تھی۔ یہ سلسلہ پچھلے 1.5 سال سے چلتا آ رہا تھا اور اب مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر کو تو میری تھکن کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ میں واقعی میں ان مریضوں کی خدمتیں کر کر کے تھک چکی تھی، کیونکہ یہاں پر آنے والی عورتوں کی زیادہ تعداد دوسرے شہروں سے تھی۔ عورتیں نہ جانے کتنی دور سے علاج کا سن کر میرے شوہر کے پاس آتی تھیں اور خوشی خوشی واپس جاتی تھیں۔ میرا شوہر بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا اور یہ حیرت کی بات تھی کہ یہ سارا علاج وہ صرف ایک سونف کے ذریعے کرتا تھا۔ عورتوں کے منہ میں سونف رکھ دیتا اور پھر ان سے کہتا کہ ہر وقت یہ سونف ان کے دانتوں کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ کافی ساری عورتوں کو یہ کام بہت مشکل لگتا تھا، لیکن میرا شوہر ان سے کہتا تھا کہ اگر تم لوگوں کو اولاد چاہیے تو یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اولاد آسانی سے نہیں ہوتی، مشکلیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں حیران تھی کہ واقعی میں عورتوں کو اولاد کی اتنی زیادہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھیں۔ جتنی دیر وہ اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی، اتنی دیر اپنی ازدواجی زندگی کے قصے لے کر بیٹھی رہتی۔ وہی ساس بہو کے جھگڑے، ساس کے تانے، معاشرے کا پریشر، ہر عورت کی اپنی ہی کہانی تھی، لیکن ہر کہانی کی بنیاد یہی ایک بے اولادی سے شروع ہوتی تھی۔ کچھ عورتیں پر امید نظر آتی تھیں تو کچھ مایوس بھی ہوتی تھیں۔ کچھ تو ایسی لڑکیاں تھیں جن کی شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا اور وہ علاج کروانے کے لیے بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے میرے شوہر کے پاس آتی تھیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات جو میرے اور سب کے لیے حیرانگی کا باعث تھی، وہ یہ کہ مجھے اور میرے شوہر کو خود بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ آج تک میرے شوہر نے وہ سونف کا دانہ مجھے کیوں نہیں دیا تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ مجھے بھی سونف کے دانے دے دیں، لیکن ان کے کانوں تک تو جوں نہ رینگتی تھی۔ انہیں بس اپنا کاروبار چمکانا تھا۔ جو عورتیں علاج کے لیے آتی تھیں، خفیہ کمرے میں ان کو لے جایا جاتا تھا اور پھر صبح سے شام تک وہ وہیں رہتی تھیں، اور ان میں سے بہت ساری عورتیں 1 یا 2 مہینے بعد ہی خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے شوہر کے پاس آتی تھیں کہ انہیں حمل ٹھہر چکا ہے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی کہ آخر کیسے ان عورتوں کو حمل ٹھہر جاتا تھا۔ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اور سچ کہتے ہیں میرا شوہر جو ہر کسی کا علاج کر کے انہیں اولاد کی خوشخبری دیتا تھا، خود اسے اور مجھے اولاد نہیں تھی۔ نہ ہی وہ میرا علاج کرنے پر آمادہ ہوتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے سونف کے دانوں تک رسائی دیتا تھا۔ سونف کے دانوں کو اس نے ایسی جگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا جو میری پہنچ سے دور تھا۔ میں اس کی غیر موجودگی میں سارا گھر کنگال چکی، مگر مجھے وہ دانے کہیں نہ دکھائی دیتے، اور وہ جو خفیہ کمرہ تھا، اس کمرے میں جانے کی اجازت مجھے بھی نہیں تھی۔ شوہر کی طرف سے عورتوں کے جانے کے بعد وہ اس کمرے کی صفائی بھی خود ہی کرتا تھا۔ پہلے تو میں نے شوہر کے معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی۔ مجھے اپنے گھر کے بہت کام تھے اور ان عورتوں کی مہمان نوازی بھی میرے ذمے تھی۔ ایک روز گھر میں علاج کے لیے آئی ایک عورت مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اسے مجھ میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے سارا دن مہمانوں کو چائے اور پانی دیتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں بھی تھکی ہوئی تھی، اسی عورت کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میرا نام شگفتہ ہے۔ کہنے لگی تم حکیم بابا کی بیوی ہو؟ تو میں نے کہا جی، میں ان کی بیوی ہوں۔ مجھے یہ نام حکیم بابا بڑا ہی عجیب لگتا تھا۔ خیر، یہاں پر آنے والی ہر عورت انہیں اپنی مرضی کے نام سے بلاتی تھی۔ کوئی انہیں ڈاکٹر کہہ رہی ہوتی تو کوئی حکیم، کوئی پیر کہتی تو کوئی عامل۔ جو بھی سمجھ میں آتا وہ وہی میرے شوہر کو کہہ کر بلاتی تھی۔ البتہ یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میرا شوہر شاید ان سبھی کا سونف کے ساتھ روحانی علاج کرتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی تم حکیم صاحب کی بیوی ہو، بڑی ہی اچھی قسمت پائی ہے تم نے جو تمہیں حکیم بابا جیسے شوہر ملے۔ کتنا عرصہ ہو چکا شادی کو؟ شاید وہ عورت پہلی دفعہ آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری اور حکیم بابا کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے۔ وہ پھر دلچسپی سے میری جانب دیکھنے لگی اور بولی کہ 1.5 سال ہو چکے ہیں تو تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ وہ جو پوچھ رہی تھی جسے 1.5 سال نہ 10 سال ہو چکے ہوں۔ میں ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی جی، ابھی تک تو ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حکیم صاحب تو سبھی کا علاج کر رہے ہیں، خود ان کی بیوی ابھی تک ماں کیسے نہ بن سکی؟ آس پاس بیٹھی عورتیں میرا چہرہ دیکھنے لگی تو مجھے جھجک سی آنے لگی۔ یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی کب سے پل رہا تھا، مگر میں کیا جواب دیتی؟ فوراً بات پلٹ دی اور کہنے لگی حکیم بابا کہتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی اولاد نہیں چاہتے، وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اتنا سن کر وہ عورتیں خاموش ہو گئیں اور میرے شوہر کی واہ واہ کرنے لگی، مگر یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی۔ رات گئے تک عورتوں کا تانتا بندہ رہا اور میرا شوہر عورت کو 3-4 گھنٹوں کے لیے کمرے میں رکھتا اور اس خفیہ کمرے کے باہر کسی کو بھٹکنے نہ دیتا۔ پھر وہ عورت نیچے اترتی تو بے حد خوش ہوتی،
इसके करीब से बेहद मशहूर कुन खुशबू आ रही होती थी। वो खुशी खुशी आती और कहती कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं हामिला हो जाऊंगी। इस रात मुझे कामों से फारिग होते हुए रात के 12 बज चुके थे जब आखिरी औरत भी अपने घर चली गई। मैं थकी हारी थोड़ी गुस्से में थी। फौरन चलते हुए शौहर के खुफिया कमरे में जाने लगी। अभी मैंने पहला कदम कमरे में रखा ही था कि शौहर गुस्से से बोला, शगुफ्ता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर क्यों आ रही हो? जानती नहीं यहाँ पर सिर्फ बे औलाद औरतें ही आ सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने फौरन मुझे कमरे से बाहर झटक दिया। मेरा वो कदम जो अंदर जाने के लिए उठा था बाहर आ गया। मैं हैरानगी से शौहर को देखने लगी और बोली, जब आपके पास आने वाली औरतें कमरे में आ सकती हैं तो आपकी बीवी आपके पास क्यों नहीं आ सकती? शौहर कहने लगा, ये एक खास कमरा है जहाँ सिर्फ बे औलाद आते हैं। शौहर का सवाल सुना तो फौरन कहा, मैं भी तो बे औलाद हूँ, मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है, फिर आखिर आप वो सौंफ मुझे क्यों नहीं खिलाते? अब तो आपके पास इलाज करवाने के लिए आने वाली औरतें भी सवाल करने लगी हैं कि आखिर अब तक मैं क्यों मां नहीं बन सकी, मैं कब तक बहाना बनाकर झूठ बोलती रहूंगी। शौहर ने जब यह सुना तो फौरन सर झटक कर दूसरी जानिब देखने लगे और बोला, तुम नहीं समझ सकोगी, अगर मैंने ऐसा अमल कर दिया तो मेरा सारा अमल ज़ाया हो जाएगा और फिर कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में मौजूद 5,000 के नोट की गड्डी को गिनना शुरू हो गए। वो 5,000 के नोट थे और मैं जानती थी कि उन्होंने ये सारे पैसे औरतों से ही वसूल किए थे। मेरा शौहर भी खूब कमाया करता था, इसमें कोई शक नहीं था कि वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता था, मगर इसके बावजूद मुझे औलाद की कमी सताती थी और ये तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था कि दूसरों का इलाज करने वाला मेरा शौहर मुझे क्यों नहीं मां बनने दे रहा था। आखिर इस बात में ऐसा क्या राज है जो मुझे सौंफ खाने नहीं देता था? मैं सोच चुकी थी कि हर हाल में वो सौंफ खाकर ही रहूंगी। आखिर सभी माँ बन रही हैं, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी माँ बनूं। दिल में अजीब सा तजस्सुस आता था, बाज़ दफ़ा शौहर से खौफ आने लगता। मैंने सोच रखा था कि इस बार जब भी शौहर कमरे से बाहर जाएगा तो मैं फ़ौरन इसके खुफिया कमरे में घुस जाऊंगी और इन सौंफ के दानों को ढूंढ कर ही रहूंगी। मगर शौहर से डर भी लगता था, वो तो अमलियात जानता था और रूहानी इलाज करता था। ये ना हो कि मैं इसकी गैर मौजूदगी में इसके खुफिया कमरे में जाऊं और इसके ताबे जिन्नात मुझे ही पकड़ लें। एक अजीब सा खौफ था दिल में, कई वसवसे आ रहे थे। मुझे इन सब कामों से डर भी लगता था, मगर तजस्सुस था कि मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। शौहर हफ्ते में 3 दिन औरतों का इलाज किया करता था, बाकी दिन वो आराम से घर में रहा करता था और कभी बाहर दोस्तों के पास चला जाया करता था। एक रोज़ जब वो घर से गया तो इत्तफाक से दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया। मैंने इसके जाने के फ़ौरन बाद डरते डरते कमरे में कदम रखा। इस कमरे का ताला खुला हुआ था, शायद शौहर जल्दी ही वापस आने वाला था, इसीलिए वो ताला लगाकर जाना भूल गया था। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ कुछ गैर मुनासिब चीज़ मौजूद ना थी। कमरा सादगी से आरास्ता था क्योंकि शौहर सफाई भी इस कमरे की खुद ही किया करता था, इसलिए मैं आज पहली बार इस कमरे को अंदर से देख रही थी। छोटा सा कमरा था, चंद किताबें एक तरफ पड़ी थी और कुछ अजीबो-गरीब अश्काल रखी गई थी। वहीं पर कुछ मोमबत्तियां पिघली हुई पड़ी थीं और एक बड़ी कांच की बोतल थी जिसमें सुर्ख रंग का माया मौजूद था। मैं चलती हुई इस बोतल की जानिब आई और ढक्कन खोलकर इसे सूंघा तो इस कदर मसहूर कुन खुशबू थी कि मुझ पर सहर तारी होने लगा। इतनी खुशबूदार खुशबू तो पहली दफ़ा ही सूंघ रही थी। इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी तो मैंने फ़ौरन इसका ढक्कन बंद कर दिया, कहीं मेरे शौहर को मेरी मौजूदगी का शक ना हो जाए। मैंने अपना ध्यान इस बोतल से हटाया और आसपास देखने लगी। मैं यहाँ पर सौंफ ढूंढने आई थी ताकि मैं भी हामिला हो सकूं। मैंने इस आसपास नज़र दौड़ाना शुरू कर दी, कई दराज खोले और चेक किए, मगर मुझे कहीं भी सौंफ नज़र नहीं आ रही थी। ना जाने इस वक्त कहाँ थी, कहीं शौहर सौंफ किसी डिब्बिया में रख कर अपने साथ तो नहीं ले जाता था, मगर ऐसे कैसे मुमकिन था? शौहर जब गया तो इसके हाथ खाली थे। मैंने अभी वापस दरवाजे की तरफ पलट कर देखा कि मेरा पाँव कालीन से अटका और मैं मुंह के बल फर्श पर गिर गई थी। मेरे हाथ में मौजूद चूड़ियां टूट चुकी थी। मैं सिसक कर रह गई। फौरन हाथ को देखा जिससे खून आ रहा था और टूटी हुई चूड़ियों की टुकड़े देखे। हड़बड़ाकर फौरन इन टुकड़ों को उठाया ताकि शौहर को शक न हो जाए। इसी पल मेरी नज़र मेज़ के निचले हिस्से की तरफ गई जिसे देखकर मैं दंग रह गई। शौहर के दिमाग का भी जवाब नहीं था। आखिर क्या था इस दराज में जो वो मुझसे भी छुपा कर रख रहा था? वो सौंफ इसने मेज़ के नीचे बनाए गए एक खुफिया दराज में रखी हुई थी। मैंने जो ही इस दराज को खोला तो इसमें सौंफ की डिबिया पड़ी मुझे मिल गई। मैं तो खुश हो गई और वो सौंफ 1 माह तक खाने थे और रोज़ाना फजर की नमाज अदा करने के बाद ही खानी थी। मैंने फ़ौरन एक मुट्ठी सौंफ वहाँ से निकालकर अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध ली और फिर हर चीज़ को वापस अपनी जगह पर रख कर नीचे आ गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। दिमाग में कई ख्यालात आने लगे। मैं अपने बच्चों का तस्वुर करने लगी। कुछ माह बाद मैं भी हामिला होने वाली थी। ये सोचकर ही मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही, मगर डर भी था कि कहीं शौहर को मुझ पर शक न हो जाए कि मैं इसके कमरे में गई थी।
जब शौहर वापस आया तो सीधा ऊपर खुफिया कमरे में ही गया। मुझे डर भी लगने लगा था कि कहीं इसे मुझ पर शक न हो जाए, मगर ऐसा ना होगा। वो जब नीचे उतरा तो काफ़ी मुतमईन सा लग रहा था। कहने लगा, ओ बेगम, आज खाना बाहर खाने चलते हैं। मैं भी मान गई और इनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चली गई। कल से फिर एक बार औरतों का तांता बनने वाला था। हमने रात का खाना बाहर खाया। मैं काफ़ी खुश थी और मेरी खुशी शौहर ने भी नोट की। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है शगुफ्ता, काफ़ी खुश लग रही हो। मगर मैं यूं ही बात टाल गई। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने वो सौंफ अपने दांतों के दरमियान रखकर कितनी ही देर बैठी रही, जब तक सौंफ की खुशबू मेरे पूरे वजूद में फैल ना गई और मुंह में वो सौंफ बिल्कुल नरम ना पड़ गई। तब तक मैंने इस सौंफ को दाना को मुंह से ना निकाला। मैं बेहद खुश थी। जैसे ही दिन चढ़ा तो दूर दराज के इलाकों से बड़ी बड़ी बसें और गाड़ियां भरकर औरतों के यहाँ आने लगी। पिछले माह जो खातून आई थी वो सभी मिठाई के डिब्बे और टोकरियां लिए हुए अंदर दाखिल हुए और खुशी से मेरे शौहर को देते हुए कहने लगे कि आपके इलाज से हम हामिला हो गई हैं, हमारा तो घर बच गया। हर औरत की अलग कहानी थी। कोई तो खुशी के मारे रोने लगी कि मेरे शौहर की वजह से इसका घर बच गया। बाज़ दफ़ा दिल में अजीब से वसवसे भी आ जाते कि शौहर इतनी देर तक गैर औरतों के साथ कमरे में रहता था, कहीं कुछ गलत, मगर इतना ही सोचकर चुप कर जाया करती, क्योंकि ये तो सरासर गुनाह था। अगर ऐसा होता तो औरतें कभी भी मेरे शौहर पर एतबार ना करती, बल्कि रोज़ कई सौ के हिसाब से आने वाली औरतें थोड़ी किरदार की कच्ची होती हैं, जो मेरे शौहर की बात मानकर अपना वजूद इसके हवाले कर देंगी। खैर, ये ख्याल भी मुझे बाद में मलामत करने लगा। भला मैं अपने शौहर पर कैसे शक कर सकती थी। मैं रोज़ाना बाकायदगी से शौहर से छुप कर सौंफ खाने लगी। अभी एक माह गुजरा था कि मुझे अपनी तबीयत कुछ बोझल सी महसूस होने लगी। मुझसे ठीक से काम नहीं किया जा रहा था। वजूद में एक अजीब सी थकावट सी महसूस होने लगती। ब्लड प्रेशर लो होने लगता। मैं दूर दराज से आए मेहमान औरतों को चाय दे देकर थक सी जाती। पूरा बदन दर्द सा करने लगता। खाना खाने को भी जी ना चाहता। एक बार तो मेहमानों के होते हुए जी मतलाने लगा तो फौरन वॉशरूम में चली गई और क्या कर रही, ना जाने मेरी तबीयत को अचानक क्या हो रहा था, मगर फिर अचानक मेरा ध्यान सौंफ के दानों की जानिब चला गया। यकीनन मैं हामिला हो चुकी थी। ये ख्याल आना ही था जैसे मेरे जिस्म में जान आ चुकी थी। मैं खुशी से मुस्कुरा उठी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल उठा। मुझे सौंफ खाते हुए एक माह हो चुका था, यानी मैं हामिला हो चुकी थी। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। मैंने मोहल्ले की एक औरत को बुलाया और इससे लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए कहा और ख़ुद इन औरतों के जाने का इंतज़ार करने लगी ताकि अपने शौहर को ये खबर सुना सकूं। मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। मगरिब का वक्त हुआ तो सारी औरतें घर से चली गईं। शौहर अपने खुफिया कमरे में कुछ ज़्यादा ही देर लगा चुका था। जब मुझसे इंतज़ार ना हुआ तो मैं इससे आवाज़ें देने लगी। शौहर थोड़ा संजीदा था। नीचे उतरा तो मुझे खुश देखकर कहने लगा, किस बात की खुशी है तुम्हें, आजकल काफ़ी खुश दिखाई देती हो। मैं खुशी से शौहर के सीने से लग गई और कहने लगी कि मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई है। आखिर मैं क्यों खुश ना हूँ। शौहर ने जब ये सुना तो सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा और बोला, कैसी ख्वाहिश, कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है तुम्हारी। मैं मुस्कुराकर शौहर का हाथ थामे हुए कहने लगी कि मैं हामिला हो गई हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। शौहर ने जब ये सुना तो इसका चेहरा सुर्ख से सफ़ेद होने लगा। वो सख्ते की कैफियत में मुझे देखता रहा और फिर अगले ही पल अपना हाथ एक झटके से मेरे हाथ से छुड़वा लिया। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं बेयकीनी से सदमे की कैफियत में शौहर को देखने लगी। मैं कुछ सवाल करती इससे पहले ही शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं बिस्तर पर गिरी थी। शौहर का ये रद्द अमल मैंने कभी भी नहीं सोच रखा था। मैंने तो सोचा था कि शौहर को जब मेरी उम्मीद से होने की खबर मिलेगी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो तो मेरे सदके वारी जाएगा। आखिर को हमारी शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले थे और मैं हामिला हुई थी। मैं सदमे से शौहर को देख रही थी कि तभी वो जो बोला वो सुनकर तो मेरी बची खुची हिम्मत जवाब देने लगी और मैं रोने लगी। शौहर गुस्से से कहने लगा कि ये बच्चा किसका है, ये कहाँ मुंह काला करके आई हो तुम। शौहर के अल्फाज से ही या कानों में पिघलता हुआ सीसा। मैं बर्फ की मूरत बनी शौहर को देखे गई। मेरा तो सांस ही रुक चुका था। फौरन बिस्तर से उठी और कपकपाते लबों से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। हम दोनों मियाँ और बीवी हैं। हमारे बीच एक अज़दवाजी ताल्लुक़ है, एक जायज़ रिश्ता है। भला आप मुझ पर ऐसी तोहमत कैसे लगा सकते हैं। शौहर ने जब ये सुना तो एक बार फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला कि खामोश हो जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बदकिरदार निकलोगी। अब मेरी ही आंखों में धूल झोंक दिया। शौहर के अल्फाज मुझे मजीद हैरान कर रहे थे। मैं कहने लगी कि ये आप ही की औलाद है। मेरा खुदा गवाह है, आप मुझ पर यूं तोहमत नहीं लगा सकते। सब हकीकतें जानते हुए भी भला आप कैसे कह सकते हैं ये। शौहर खामोश हो गया और कुछ कहना ही चाहता था, मगर शायद इसके पास अल्फाज नहीं थे।
वो कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बाप बन ही नहीं सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। शौहर से कुछ कहती तभी इसे एक ज़रूरी कॉल आ गई। ना जाने क्या मसला था कि शौहर मुझे वहीं पर छोड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने इन सौंफ के दानों को देखा, दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। शौहर आखिर कहना क्या चाहता था। मैंने सौंफ के दानों को लाशौरी तौर पर एक डिब्बिया में डाला और कुछ सोचते हुए घर से निकल गई। मेरा रुख एक लेबॉर्ट्री की जानिब था, जहां जाकर मैंने अपने टेस्ट करवाए। कुछ देर बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो ये देखकर मैं चौंकी कि मैं सच ही प्रेग्नेंट थी। ये तो रिपोर्ट्स में भी लिखा हुआ था, मगर फिर आखिर शौहर मुझ पर तोहमत कैसे लगा सकता था। कुछ सोचते हुए मैंने इन सौंफ के दानों को भी टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिया। लेबॉर्ट्री वाले कहने लगे कि वो इसका रिजल्ट 2 दिन तक देंगे। मैं भी घर आ गई। अगले दिन शौहर घर नहीं आया था। अगले रोज़ जब वो आया तो काफ़ी परेशान लग रहा था, जबकि मैं एक तरफ बैठी हुई रो रही थी। शौहर ने मुझे देखा तो मेरे पास आया और बोला, सच सच बताओ किसके साथ मुँह काला किया है, ये बच्चा किसका है। शौहर के अल्फाज सुने तो अपना मुंह नोच कर कहने लगे कि खुदा का वास्ता है मेरे किरदार पर बात मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो सौंफ खाए थे जो तुम्हारी औरतों को देते थे और बदले में लाखों रुपए ले रहे हो। शौहर ने जब यह सुना तो चौंक कर रह गया। वो तो शायद अल्फाज भूल चुका था। फिर कुछ लम्हों बाद कहने लगा, पागल औरत, तुमने वो सौंफ कैसे खा लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें हाथ लगाने की। मैं गुस्से से कहने लगी कि मैं क्यों नहीं खा सकती, आखिर क्या है आपके दिल में, आप क्यों मुझे इससे दूर रख रहे हैं, जब बाकी खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शौहर ने जो बात कही वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। शौहर कहने लगा कि मैं बांझ हूँ, कभी भी बाप बन ही नहीं सकता, इसीलिए तुम्हारी इस बात पर मुझे गुस्सा आया था और अब मैं मज़ीद गुस्सा हूँ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर वो सौंफ खा लिए। इसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। रिपोर्ट्स मिल चुकी थीं। शौहर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा, कहने लगा कि किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं, मगर जब मैंने रिपोर्ट खोल कर पढ़ी तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। इसमें जिस केमिकल का जिक्र था वो पढ़कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस सौंफ के साथ एक ऐसा केमिकल लगाया गया था जो औरतों के खून में शामिल होकर इनकी तबीयत यूँ ख़राब करने लगता जैसे वो हामिला होती हैं। इसके बाद जब इसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता तो वो मुस्बत ही आता, मगर इसका असर कब तक रहता, जब तक वो केमिकल थोड़ी थोड़ी मिकदार में लिया जाए। जब केमिकल छोड़ दिया जाए तो जिस्म वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है। मैंने वो रिपोर्ट शौहर के मुंह पर मारी और पूछा कि ये सब क्या है। वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था, मगर तुम सब कुछ पहले ही जान चुकी हो। दरअसल मैं औरतों को हामिला नहीं करता, बल्कि इन्हें केमिकल वाला सौंफ खिला देता हूँ। वो रोज़ाना खाती हैं। जब इनका टेस्ट होता है तो रिपोर्ट्स में ये आता है कि वो हामिला हो चुकी हैं, जबकि 2 माह बाद जैसे जैसे इसका असर ख़त्म होता है तो वो ये समझते हैं कि शायद इनका बच्चा ज़ाया हो चुका है। इसके बदले में कई सालों से लोगों से लाखों रुपए लेता रहा, मगर अब कल ही इस केमिकल पर पाबंदी लग चुकी है और मैं जो खुफिया तौर पर अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहा था इसको, इसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई है और अब वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैं भी ये इलाका छोड़कर जाने वाला हूँ। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो लंबा अंदर जाऊंगा। शौहर के अल्फाज मुझ पर इंकिशाफात कर रहे थे। समझ नहीं आई कि अपनी किस्मत पर रोऊं या शौहर पर गुस्सा करूं। मैं सर पकड़कर बैठ चुकी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शौहर ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, मगर तभी छत और दीवारों से पुलिस एहलकार कूद कर अंदर आ गए। उन्होंने मेरे शौहर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। मैं सर पकड़कर वहीं बैठी रह गई। बेशक बुराई और धोखेबाजी का अंजाम बुरा ही होता है। आज तक मैं यकीन भी नहीं कर सकती थी कि मैं इस कदर ख़तरनाक और धोखेबाज फ्राडिये के साथ रह रही थी। ये खबर पूरे इलाके में फैली तो औरतें शौहर को लान तान करने लगीं, मगर खैर जलालत तो अब शौहर का मुकद्दर थी।